Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We were discussing about cell division and we have done mitosis. Now, today we will do meiosis. What is mitosis? Just a revision. And a question was given to you that why mitosis is called an equational division. We all know that mitosis is an equational division because the number of chromosomes remains the same at the end of division. Basically, what will happen? That you will have a chromatin. This chromatin contains and form chromosome. So these chromosomes divide and give rise to two processes, that is mitosis and meiosis. So in the previous class we have discussed about mitosis. Okay, now we will, and I have told you that we have two types of cells in a chromosome, that is somatic cells and reproductive cells. So mitosis takes place in somatic cells, which is known as vegetative cells. Now the main topic is meiosis. So meiosis occurs in reproductive cells. Now what do you mean by a reproductive cell? When we discussed about mitosis, we say that there were somatic cells and reproductive cells. So mitosis takes place in somatic cells, and therefore the other cell is your reproductive cells. Now what do you mean by reproduction? Reproduction means it is a process by which you can keep on increasing your generation. Okay, so that you can produce new generations. That is reproduction. So जिस सेल में reproduction होगी, that is your reproductive cell. So meiosis ही क्यों reproductive cells में होता है, आपको कहीं और meiosis क्यों नहीं होता? We all know that human beings have 46 chromosomes. That means 23 pairs of chromosome. Okay, that means 23 pairs of chromosomes. And in that 23 pairs of chromosome, 22 pairs are of somatic cells, that means vegetative cells, and the one which is left, that means the 23rd pair, is called your reproductive pair. उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव पेयर बोलेंगे. सो यही 23rd पेयर आपको क्या करेगा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. नाउ जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास गैमीट्स होते हैं. क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं. नाउ बिफोर दैट जस्ट हैव अ लुक. As human body have 46 chromosomes, therefore at the time of fertilization, what is fertilization? That male and female gamete fuse together. Male gamete is your sperm and female is your ova. So when this sperm and ova get fused, they will make a new egg, new substance, that is a zygote. So इस zygote में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 46, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 46. बट इफ द स्पर्म कंटेन, सपोज आपका स्पर्म कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम, क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्पर्म के कि आपके पास सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम आएगा स्पर्म में, ऐसे जो स्पर्म एंड ओवा में भी अगर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या देगा आपको? 92. दैट मीन्स आपका ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो गया. एंड डबल होगा तो ऑब्वियसली आप ह्यूमन बीइंग तो रहेंगे नहीं, आप कोई मॉन्स्टर बन जाएंगे. सो टू रिड्यूस दिस मॉन्स्टर पार्ट, आप मॉन्स्टर में कन्वर्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे मियोसिस होता है. क्या होता है यहाँ पे? मियोसिस. सो दैट आपका जो ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर है वो मेंटेन रहे. सो अगर इफ स्पर्म कंटेन्स 23, ओके, एंड ओवा ऑल्सो कंटेन्स 23. So when you add this 23 and 23, it will give you 46 chromosome. So आपने क्या देखा कि अगर स्पर्म के पास 23 एंड ओवा के पास 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो दोनों का हाफ हाफ हो गया. अब हाफ हाफ से क्या हुआ? आपका टोटल ओवरऑल कितना है? 46. तो आपने ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम में, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46. तो मेंटेन हो गए. दैट्स व्हाई वी हैव अ मियोसिस, सो दैट कि आपका क्रोमोसोमल नंबर इंक्रीज ना करे. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म एंड ओवा ने क्या किया? आपके क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया, रिड्यूस करिए. दैट्स वाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? जब आपके 46 क्रोमोसोम हैं, पहले स्पर्म्स एंड ओवा बने, स्पर्म्स एंड ओवा में 23 क्रोमोसोम्स हो गए. सो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो 23 फ्रॉम स्पर्म एंड 23 फ्रॉम ओवा कंबाइन टुगेदर, एंड जो आपका जाइगोट बनेगा वहाँ पे कितना होगा? 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. एंड ऐसे आपने अपने क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन कर लिया. सो इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. नाउ दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द डायग्राम. यू कैन सी दैट
यहाँ पे आपका ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, सब सॉरी 23rd पेयर है आपका क्रोमोसोम का। अब आपके पास फर्स्ट वाले केस में आपका यहाँ पे एक ये आया और एक ये आ गया, हाफ हो गया यहाँ पे। एंड सेकंड वाले केस में रेस्ट 2 आ गए, दीज 2 आर इन दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है आपका, ये गैमीट बन गए। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये इसका भी हाफ हो गया, इसका भी हाफ। तो बेसिकली हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आ गए। सो दैट मीन्स कि मियोसिस में क्या हो रहा है कि हाफ हो रहा है, बट जब ये हाफ आपस में कंबाइन करेंगे, सपोज दिस हाफ एंड दिस हाफ कंबाइन टुगेदर सपोज, तो क्या होगा अल्टीमेटली यही रिजल्ट देगा आपको। दैट मीन्स कि आपके पास एक्चुअली में 46 क्रोमोसोम वापस मेंटेन हो जाएंगे। ओके, so that's why meiosis is called an reductional division. Now just have a video. Just a minute. We will have a video. See meiosis. Now you all are similar to your mom and dad, but कुछ ना कुछ differences होते हैं. That difference is because of meiosis. That was all because of meiosis. Now, mitosis makes identical body cells, but meiosis does not make identical body cells. Similar होंगे but identical नहीं होंगे. Okay? See. Now you can see that human sperm and ova has 23 chromosomes. ऐसा क्यों है आपके पास, जबकि बाकी सेल्स के पास कितने होते हैं आपके पास 46 होते हैं. सी 46 था, 23 इधर आया, 23 इधर आया, मीन्स सपोज वन इज स्पर्म एंड वन इज ओवा. ओके, तो 23 आया, तो 23 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एक्जैक्टली. बट फर्स्ट केस में आपका 46 से हाफ होगा 23 एंड 23. सो आगे क्या होगा कि आपका जो 23 एंड 23 आपस में कंबाइन हो जाएंगे. लाइक आपका ये स्काई ब्लू कलर का एंड जो आपका ऑरेंज कलर का, जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, आपको 46 वापस दे देंगे. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिविजन, एंड दिस इज नोन एज meiosis. I hope this is clear to you. Now this was actually meiosis. Now what we have studied is that is meiosis and mitosis. So the question is why meiosis is called a reductional division. आप meiosis को reductional division क्यों बोलते हैं? And the second question is differentiate between meiosis and mitosis. हमने कल माइटोसिस पढ़ा था, आज हमने मियोसिस पढ़ा. सो अब मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में डिफरेंस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.